Good afternoon, my dear students. I welcome you to Dikshansh EduTech. I am Disha. I will be teaching you English of Class 10, Lesson 1, A Letter to God. So let's read this lesson. A Letter to God is a beautiful story depicting tender human emotion. This is the story of a poor farmer, and this story is written by G.L. Fuentes. G.L. Fuentes is the writer of this story. We must know something about the writer. This is G.L. Fuentes. G.L. Fuentes was a Mexican novelist, poet and journalist. He was born on November 17, 1895 on a ranch in the Huasteca region of Veracruz. So basically, this story is written by this famous writer G.L. Fuentes. So he is remembered as a great novelist as well as a poet and a journalist. And he was born on a farmhouse in a region of Veracruz, and Veracruz is a province of Mexico. He began writing at the age of 15, just as the Mexican Revolution broke out. और G.L. Fuentes 15 साल की उम्र में लेखन का कार्य शुरू कर दिया. कब? जैसे कि मैक्सिकन क्रांति का शुरुआत हुआ. He is best known for being one of the most important chronicles of the Mexican Revolution and its effects. So, G.L. Fuentes has been a very influential person in the Mexican Revolution, and due to him, this country is remembered by everyone, and everyone remembers him as a great writer. Now, let's move on to the next slide. Now, as I was telling you, that this is the story of a poor farmer, A Letter to God. This is a story of a poor farmer who has complete faith in God. ये जो कहानी है एक गरीब किसान के बारे में है जिसका भगवान पर पूरा भरोसा रहता है. He remembers God when he loses his crops due to hailstones and hailstorms. ओले पड़ने लगे, काफी तेज बारिश हुआ और उस बारिश के साथ आंधी तूफान भी था और ओले पड़ने लगे और ओले पड़ने के कारण उसका सारा फसल बर्बाद हो जाता है. और ये किसान जो है जिसका नाम है लेंचो, ही इज द मेन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी. उसे भगवान पर पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है. तो क्या करता है, एक पत्र लिखता है भगवान को जिससे कि भगवान उसकी मदद करे. तो इतना विश्वास रहता है भगवान पर उसे. सो नाउ लेट्स सी द थीम ऑफ द स्टोरी. The story discusses the power of innocent faith in God by a man and how he is able to accomplish his want through it. ये कहानी
क्या दर्शाता है ये कहानी? यह दर्शाता है कि बहुत ही मासूमियत की तरह एक विश्वास एक करता है, एक व्यक्ति भगवान में अटूट विश्वास करता है। उस इनोसेंसी को दर्शाया गया है इस कहानी में, और किस प्रकार से अपने जो जरूरत रहता है उसे पूरा भी कर लेता है। ही इज एबल टू accomplish his needs through having a faith in God. The story ends with an irony, और यह जो कहानी है एक आयरनी में खत्म हो जाता है। क्यों आयरनिकल है? I will tell you. Okay, I will just prove it how this story has been ironical. Okay, he has extreme faith in God. यह जो गरीब आदमी है, पुअर फार्मर जो है, उसे भगवान में अटूट विश्वास है। He has full faith in God, and through this story the writer had tried to depict the invincible and insurmountable faith in God of a simple, poor, honest and hard-working farmer. और इस व्यक्ति का इतना अटूट विश्वास है भगवान में कि उसके मन में एक बहुत ही पावरफुल फेथ आ जाता है। He acquires a powerful faith in God, and due to that, he is able to accomplish his want. So, इस कहानी में एक सिंपल, बहुत ही साधारण, गरीब, ईमानदार और एक हार्ड वर्किंग, बहुत ही मेहनती फार्मर का वर्णन किया गया है इस कहानी में, जो कि बहुत ही रोचक कहानी है, बहुत ही इमोशनल स्टोरी है। दिस इज अ वेरी इमोशनल स्टोरी, बहुत ही भावनात्मक कहानी है। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ते हैं। नेक्स्ट, नाउ वी विल सी द पेन स्केचेस, की पॉइंट्स। ये पेन स्केचेस हैं कि इसमें कौन कौन सा कैरेक्टर्स हैं। सो who are the main characters in this story? So basically there are three main characters in this story. Lencho, who is a poor farmer, then postmaster, who works in the post office, and then the third character is Lencho's wife. But Lencho is the main character of this story. And both the postmaster and Lencho's wife, they are the other characters. You can call them the secondary characters. Okay. So let's know about these characters first. First, I will describe our Lencho. Lencho, he had a firm belief in God and was very innocent. Lencho जो एक गरीब किसान है, उसे भगवान में अटूट विश्वास रहता है। भगवान पर उसका बहुत आस्था रहता है, गहन आस्था रहता है, और बहुत ही इनोसेंट है, बहुत ही मासूम है। अपनी मासूमियत का भी परिचय उसने दिया है, अपनी ईमानदारी का भी परिचय दिया है। He was very caring for his family, and that is why he decides not to give up and find some way to help his family. So when Lencho's crops are ruined or destroyed by the hailstorm, he never goes in depression. He never gets depressed. First, he thinks about that, what he will be doing, how he will run his family, how he would feed his family members and also himself. But afterwards, he forgets about that despair, and
he turns out to be a very caring person for his family, and he never gives up his hope and tries to help his family. तो कभी भी वो हार नहीं मानता है, भले वह बहुत ही विषम परिस्थिति से गुजरने लगता है, लेकिन उसे भगवान पर अटूट विश्वास रहता है और वह सोचता है कि भगवान जरूर उसकी मदद करेंगे। पोस्टमास्टर, तो ये हो गया लेंचो के बारे में एक संक्षिप्त परिचय। नाउ कम टू द सेकेंड कैरेक्टर, पोस्टमास्टर। द पोस्टमास्टर इज अ नाइस, हेल्पफुल एंड genuine person whose natural instinct was to help Lencho, and therefore he collects money for him and even deducts some money from his own salary. So basically, as written in the story, the postmaster is a very kind-hearted person, बहुत ही दयालु किस्म के व्यक्ति है, जिनको किसी का तकलीफ, किसी का दुख देखा नहीं जाता है। ये किसी के तकलीफ और दुख को देख नहीं सकते हैं। कौन? पोस्टमास्टर। सो बहुत ही हेल्पफुल पर्सन है, इज ए वेरी हेल्पफुल पर्सन एंड वेरी ऑनेस्ट पर्सन, और उनका एक नेचुरल हैबिट रहता है उनमें, जिससे कि वो लेंचो का मदद करने का कोशिश करते हैं और मदद करते भी हैं। एंड in order to help Lencho, he collects money from his employees and also he deducts a part of his salary. तो लेंचो की मदद करने के लिए क्या करते हैं, जो उनके साथ उनके ऑफिस में जो कर्मचारी लोग काम करते हैं, उनसे कुछ पैसा लेते हैं, मांगते हैं डोनेशन के रूप में, और अपने सैलरी का कुछ हिस्सा भी वो मिलाते हैं, जिससे कि वो लेंचो को भेज सके पैसा। नाउ द थर्ड कैरेक्टर इज लेंचोज वाइफ। लेंचोज वाइफ इज टू अ बिलीवर ऑफ गॉड एंड हैज इनफ फेथ ऑन हर हस्बैंड। लेंचो की पत्नी को भी भगवान पर अटूट विश्वास है और साथ ही साथ उसकी पत्नी को अपने हस्बैंड पर भी बहुत ज्यादा विश्वास है। So she is a pious lady and she is an honest and a very hard working lady, who? Lencho's wife. And she feels that God would surely help their family, help her family. Now next. Now we must know about the literary devices used in this story. So basically, there are two main literary elements in the story. जहां तक literary elements का सवाल है, literary devices का सवाल है, इस कहानी में मुख्य रूप से दो literary devices है। आप तो सब नाम सुने होंगे, metaphor, simile, all these are literary devices. So basically the use of metaphor and the irony in the story, खास करके दो लिटरेरी डिवाइसेस का यूज किया है लेखक G.L. फुएंटिस ने। बहुत ही सुंदर तरीके से उन्होंने यूज किया है मेटाफोर का, और आयरनी का भी इस कहानी में समावेश किया है। तो सबसे पहले हम देखेंगे मेटाफोर का, किस प्रकार से मेटाफोर का प्रयोग इन्होंने किया है। In the phrase huge mountains of clouds, the author draws comparison between hugeness of the mountains with the clouds. तो मेटाफोर का मतलब होता है, this is a type of literary device in which we compare certain words with another words. जैसे लेखक ने यहाँ पर ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, मतलब विशाल जो
विशाल जो पहाड़ के जैसे बड़े बड़े जो बादल होते हैं उसको कंपेयर किया है विद द ह्यूजनेस ऑफ माउंटेन्स। मतलब पर्वत जो होता है बहुत विशाल होता है। यू नो हाउ वास्ट, हाउ बिग, हाउ एनॉर्मस is a mountain, and here the writer compares the huge mountains of clouds with the hugeness of the mountains, mountain का विशालता से उसका तुलना किया है। किसका? क्लाउड्स का। तो ये हो गया मेटाफोर। The author compares the raindrops with new coins, और यहां पर देखते हैं कि जो ऑथर है रेनड्रॉप्स को कंपेयर करता है न्यू कॉइन से। जो बारिश के बूंदे जब गिरना शुरू होता है, जब वो जो कैरेक्टर है लेंचो अपने खेत में रहता है और खड़ा होकर देखता है कितने अच्छे बादल दिखाई दे रहे हैं, अब रेन होने वाला है और थोड़ा सा बारिश हो जाएगा तो उसका क्रॉप पूरा खिलखिला जाएगा। तो पहले रेनड्रॉप्स को न्यू कॉइन्स से तुलना करता है। ये लेंचो जो कहानी में जो कैरेक्टर है ये तुलना करता है रेनड्रॉप्स को नए सिक्के के साथ। ठीक है, तो इस तुलने को हम लोग क्या कहते हैं? मेटाफोर। कोई भी चीज का कंपैरिजन दूसरे चीज से जब हम करते हैं तो ये हो जाता है मेटाफोर। उसके एक समान कंपैरिजन किया गया है, समानता देखा गया है, सिमिलरिटी। द हेलस्टोन्स हैव बीन कंपेयर्ड टू फ्रोजन पर्ल्स, और जो ये ओले हैं हेलस्टोन्स, इसका कंपैरिजन किया है फ्रोजन पर्ल्स, मतलब बर्फ के टुकड़े जो गिर रहे हैं बारिश में जो बर्फ के टुकड़े जो गिर रहे हैं, जो ओले पड़ रहे हैं, उसको कंपेयर किया है फ्रोजन पर्ल्स से। ठीक है, फ्रोजन पर्ल्स मतलब होता है एकदम फ्रीज हो जाना कोई भी चीज। मतलब एक टेम्परेचर पे -डिग्री टेम्परेचर पर जब लिक्विड बहुत ज्यादा -डिग्री टेम्परेचर पर चले जाता है तो वो बर्फ में बदल जाता है, और इसको फ्रोजन पर्ल्स से तुलना किया है हेलस्टोन्स। A plague of locusts have been compared with disaster that spreads rapidly and destroys everything like the hailstorm। और प्लेग ऑफ लोकस्ट का मतलब हुआ, प्लेग जानते हैं, प्लेग एक ऐसा बीमारी है, प्लेग, इसके बारे में आप जानते हैं। तो ये एक इन्फेक्शनस बीमारी है, जब कहीं पे होता है तो सारे लोगों में ये बीमारी हो जाता है। तो लोकस्ट एक प्रकार का इंसेक्ट्स होता है जो कि क्रॉप्स को इतना डिस्ट्रक्शन पहुंचाते हैं, इतना बर्बाद करते हैं क्रॉप्स को कि और कुछ नहीं बचता है। और उसी प्लेग ऑफ लोकस्ट को किससे कंपेयर किया है? हेलस्टॉर्म से। इसका मतलब ये प्लेग ऑफ लोकस्ट ये बर्बादी से, डिजास्टर से कंपेयर किया है, सॉरी, ये डिजास्टर से कंपेयर किया है कि जिस प्रकार ये प्लेग ऑफ लोकस्ट फैलता है, बहुत ही ये बुरी तरह से फैलता है और पूरे चीज को बर्बाद कर देता है। हेलस्टॉर्म जो है जिस प्रकार से बर्बाद कर देता है, उसी प्रकार से वो कीड़े मकोड़े जो है पूरे क्रॉप को बर्बाद कर देते हैं। ठीक है, तो प्लेग ऑफ लोकस्ट को ये यहां कंपेयर किया है डिजास्टर से, बर्बादी से। जिस प्रकार से जो ओले पड़ते हैं, ओले क्या करते हैं? पूरे क्रॉप्स को नष्ट कर देते हैं। नाउ नेक्स्ट, उसके बाद हम लोग देखते हैं और कंपैरिजन देखते हैं, यहां हम लोगों ने कंपैरिजन देखा। ठीक है, तो और भी मेटाफोर का यहाँ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। एग्जाम्पल्स में बुक में जो मेटाफोर जो यूज किए गए हैं वही यहाँ पर दिया गया है। लेंचो हैज बीन कंपेयर्ड विथ ऑक्स
of a man, which means very hard working. लेंचो को लेखक ने कंपेयर किया है ऑक्स ऑफ ए मैन, मतलब एक बैल खेत में कितना मेहनत करता है। बैल के सहारे जब खेत जोता जाता है, प्लॉइंग किया जाता है, तो किस प्रकार से बैल मेहनत करता है। सो दिस लेंचो वर्क्स हार्ड लाइक एन ऑक्स, दैट्स वाई he is compared with ox of a man. That means Lencho was very hard working. He is very hard working. Irony. Irony क्या है देख लीजिए. Irony is when words are used to express something that is very different from the actual intent. Irony क्या होता है कि when some words are there, ऐसे words use किए जाते हैं जिसका मीनिंग बिल्कुल अलग होता है, so that becomes the irony in the story. That is very different from the actual intent. मतलब मेरे मन में कुछ, क्या किसी के मन में इंटेंशन हो सकता है कि क्या किसी के बारे में कह सकता, मान मैंने किसी को मदद किया और हो सकता है मेरे मदद करने के बावजूद भी कोई मेरा बुराई करे, तो ये हो गया आयरनी कि मैंने मदद किया इनडायरेक्टली किसी को और वो व्यक्ति मेरी ही बुराई करने लगा, तो दिस बिकम्स एन आयरनी, ये एक आयरनी हो जाता है. द ऑथर हैज गिवन द स्टोरी एन आयरनिक एंडिंग. सो दिस स्टोरी ends in an irony. Related to God is such an story, such an emotional story, which ends in an irony, which gives an ironic ending. Okay? अब मुझे उम्मीद है कि आप ये मेटाफोर के बारे में सारी चीज क्लियर हो गए होंगे, आयरनी के बारे में भी क्लियर हो गया होगा. नाउ नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ते हैं. Objective. What are the objectives of this story? Let's see. To make them understand the importance of faith. इस स्टोरी का क्या उद्देश्य है? ये तो इतना सुंदर स्टोरी है, अभी स्टोरी आप लोगों को मैं डिटेल में एक्सप्लेन नहीं किया हूं, ये जो जस्ट मैं उस स्टोरी के बारे में थोड़ा सा सिनॉप्सिस दे रहा हूं आप लोगों को, जिससे कि और क्लियर हो सके. इसके बाद जब मैं स्टोरी लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड में जब आपको पढ़ाऊंगा तो बिल्कुल पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा. तो बेसिकली इस स्टोरी का उद्देश्य यही है कि बच्चे जो है फेथ का महत्व सीख सकें. द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टोरी इज टू मेक द स्टूडेंट्स understand the importance of faith. Next, to make them believe that faith can move mountains. और ये भी बताना है, ये भी इस कहानी से ये भी बच्चों को सीखने को मिलता है कि अगर मन में विश्वास है, भगवान की तरफ विश्वास है या अपने आप पर विश्वास है, सो इवन अ पर्सन कैन मूव माउंटेन्स. हम लोग पहाड़ों को भी एक जगह से दूसरी जगह हटा सकते हैं. तो ऐसा मन में भावना है, विश्वास ऐसा रहना चाहिए. टू डेवलप सच अ फेथ इन देम, टू डेवलप कॉन्फिडेंस इन देम. और क्या उद्देश्य है? एक ऐसा विश्वास, टू क्रिएट सच अ फेथ इन द स्टूडेंट्स सो दैट कॉन्फिडेंस कुड बी डेवलप्ड इन देम, जिससे कि आत्मविश्वास की उत्पत्ति हो सके. आई मीन बच्चों में और ज्यादा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ सके. तो यह भी उद्देश्य है इस कहानी का.
to encourage them to develop faith in them. और एक और इसका उद्देश्य है इस कहानी का कि बच्चों को हम प्रोत्साहित करें जिससे उनकी फेथ में बढ़ोतरी हो सके, जो अपने आप पर भी विश्वास कर सके, ईश्वर में भी विश्वास कर सके। तो उनके विश्वास को प्रोत्साहित करने के लिए भी, प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से भी यह कहानी लिखा गया है। तो खास करके इस कहानी का मेन उद्देश्य है बच्चों में विश्वास को उत्पन्न करना, विश्वास को बढ़ाना, विश्वास के मतलब को समझना कि आखिर फेथ क्या होता है। मन में अगर विश्वास हो तो कुछ भी हो सकता है। जिस प्रकार ये गरीब किसान लेंचो में इतना विश्वास है भगवान के प्रति कि उसे अंत में मदद मिलती है। उसके जो सारे क्रॉप्स बर्बाद हो जाते हैं हेलस्टोन से, उसके बजाय उसे 70 पेसोस मिलते हैं भगवान की ओर से। तो उसका भगवान पर इतना विश्वास रहता है। हालांकि भगवान उसकी मदद नहीं करते हैं, मदद तो पोस्ट मास्टर और एम्प्लॉयज करते हैं, लेकिन भगवान पर अटूट विश्वास को देखकर ये पोस्ट मास्टर बहुत ही क्या करते हैं, दया दिखाते हैं इस किसान के प्रति, इस गरीब लेंचो के प्रति, और पैसा कलेक्ट करके लेंचो को भेजते हैं। तो पूरी कहानी हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट की पॉइंट्स देखेंगे, क्या क्या की पॉइंट्स है इस कहानी के। विल जस्ट लुक आफ्टर द की पॉइंट्स। रेंचो वॉज ए फार्मर एंड हैड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न। लेंचो एक किसान था और उसके जो खेत में लहलाते हुए पूरे पौधे थे, कॉर्न के पौधे थे, ठीक है। हिज फील्ड वॉज फुल ऑफ राइप कॉर्न, ओके, एंड इट वॉज गोइंग टू गिव अ वेरी गुड हार्वेस्ट। बहुत अच्छा हार्वेस्ट होता अगर हेलस्टोन से उसके क्रॉप्स बर्बाद नहीं होते लेंचो के। He needed a downpour to make his harvest good. तो यहां पर हम देखते हैं कि लेंचो एक गरीब किसान है and he is standing before his field waiting for at least a downpour. एक अच्छा खासा बारिश के बारे में सोचता है कि एक्सपेक्ट करता है कि काश अच्छा बारिश हो जाता जिसके उसके पके हुए जो अनाज है और उसका प्रोड्यूस बढ़ सके, इट कैन गिव मोर यील्ड्स। तो उसे क्या जरूरत है उसके खेत के लिए? एक डाउनफॉल, मीन्स रेनफॉल। ही नीडेड अ डाउनफॉल, एक अच्छी खासी बारिश की जरूरत थी। बस एक थोड़ी देर की अच्छी खासी की बारिश की जरूरत थी, ज्यादा देर की नहीं, जिससे कि उसका फसल अच्छा हो सके। बट द रेन टर्न इनटू hailstones which destroyed his whole crop of corn. लेकिन जब बारिश आया तो सबसे पहले ये कैरेक्टर जो है लेंचो, गरीब किसान, he becomes very happy, वो बहुत खुश होता है। और ये बारिश के बूंदों से हेल स्टोन में तब्दील हो गया, ओले में तब्दील हो गया, जिससे कि उसका सारा क्रॉप बर्बाद हो गया। सो रेन ड्रॉप्स it turned to hailstones, and due to which the whole crop of lencho was destroyed. He had nothing to eat, so he decided to seek help from God. उसके बाद उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचा हुआ था, पूरे अनाज नष्ट हो गए। अब वो साल भर, एक साल कैसे अपना जीवन गुजर बसर करेगा, वो उसके लिए एक बहुत बड़ा समस्या उत्पन्न हो गया, क्योंकि कुछ नहीं था, कुछ अनाज नहीं था जिससे कि उसके परिवार उसका सेवन कर सके। He wrote a letter to God demanding 100 pesos. When Lencho, the poor farmer, realized that there was nothing left for
him and his family to eat. Then he wrote a letter to God demanding 100 pesos because he had complete faith in God. Now, next slide. He also requested to send the money through another means because what he believed that post office employees were bunch of crooks. और उसने जब पोस्ट मास्टर ने लेंचो को 100 पेसोज इकट्ठा नहीं कर पाए और 100 पेसोज की जगह टोटल 70 पेसोज भेजे. पेसो एक प्रकार का करेंसी है. लेटिन अमेरिकन कंट्रीज में, अफ्रीकन कंट्रीज में ये पेसोस का उपयोग हुआ करता था. तो 100 पेसोस की जगह जब 70 पेसोस जिसको मिला तो उसे लगा कि भगवान तो 100 पेसोस भेजोगे. ही रियलाइज दैट गॉड माइट हैव सेंट 100 पेसोस, बट द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज they might have taken 30 pesos from the envelope. उसे लगा कि उस लिफाफे से 100 पेसोज में 30 पेसोज वो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज, पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी लोग ले लिए होंगे, जिससे कि उसे कम पैसे की प्राप्ति हुई, 70 पेसोज की. तो इसीलिए अपना जब सेकेंड बार लेटर लिखा गॉड को, तो उसमें लेंचो लिखता है कि लेंचो रिक्वेस्ट करता है, विनती करता है भगवान से. उस लेटर में विनती करके लिखता है कि हे भगवान, आप नेक्स्ट टाइम जो बाकी के 30 पेसोज आपको भेजना है, अब की बार आप दूसरे कोई साधन से भेजिए, पोस्ट से मत भेजिए, क्योंकि ये पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज जो है दे आर बंच ऑफ क्रूक्स. मतलब वो लोग बहुत ही डिजॉनेस्ट है. दे आर डिजॉनेस्ट पर्सन्स, दे आर अ चीट. So then don't send through post. Now next. So today we have come to the end of the part 1 of this lesson. I'll come with the next part of this lesson in the next class, and I'll be explaining the lesson in detail. Thank you.